Solid-state chemistry is a fascinating subject that deals with the study of solids and their properties. It forms a crucial part of the Class 12 Maharashtra State Board Chemistry syllabus, as well as other boards, including IIT/NEET and various CETs, to help students grasp the concepts effectively. Ignited Minds Tutorials has uploaded a comprehensive series of videos on this topic. These educational videos cover various aspects of solid-state chemistry, including crystal lattice structures, unit cells, types of solids, and their properties. The tutorials also delve into topics like close packing, voids, imperfections, and defects in solids. With clear explanations and examples, students can deepen their understanding of this important subject. Solid-state chemistry plays a crucial role in different scientific fields, including materials science, semiconductor technology, and drug design. Understanding the basic principles of solid state helps students explore these diverse areas and opens up numerous career opportunities. By watching these video tutorials on solid state chemistry, students can enhance their knowledge, improve their problem-solving skills, and be well prepared for their board exams, entrance tests, or competitive exams like IIT and NEET. Ignited Minds Tutorials' dedication to providing quality education through their online platform ensures that students have access to reliable and comprehensive learning resources. So, dive into the world of solid-state chemistry and ignite your mind with these enlightening videos. ओके बच्चा पार्टी क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल्स हम अभी देखेंगे 3D में। कल हमने 2D में देखा, ठीक है। 2D में कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं? 5, ठीक है। देयर आर 5 बेसिकली पॉसिबल स्ट्रक्चर्स इन 2D डायमेंशन। अभी हम 3D में देखेंगे। सो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. If the three-dimensional arrangement of constituent particles in a crystal lattice is represented diagrammatically, in which each particle is depicted as a point, the arrangement is called a crystal lattice. तो आपका देखो हर एक पार्टिकल एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे? एक क्रिस्टल लैटिस. दिस इज बेसिकली अ क्रिस्टल लैटिस. Thus a regular three-dimensional arrangement of points in space is called a crystal lattice. तो आपका रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है उसको अपन क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है, ठीक है, मतलब सिर्फ ये 2 डायमेंशन नहीं है, 3 डायमेंशनल है, ठीक है। ओके, सो दिस इज बेसिकली अ 3 डायमेंशनल, जस्ट एज 5 पॉसिबल 2 डायमेंशनल लैटिसेस. तो आपके भाई साहब 2 डायमेंशनल लैटिसेस कितने पॉसिबल हैं? 2D में हमने देखा 5 पॉसिबल लैटिसेस हैं. देयर आर 5 पॉसिबल लैटिसेस इन 2 डायमेंशंस, ठीक है। देयर आर 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिसेस. और 3D में आपने देखा उस दिन जैसे हम देख रहे थे, आपके 14 पॉसिबल लैटिसेस हैं. ये 14 पॉसिबल लैटिसेस को अपन क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी? दीज आर नोन एज ब्रावाइस लैटिसेस, ठीक है। दीज आर नोन एज ब्रावाइस लैटिसेस, ठीक है। ओके, सो ईच पॉइंट इन अ लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड अ लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड. जो आपके 2 डायमेंशनल लैटिस पॉइंट पे एप्लीकेबल होता है वही 3 डायमेंशनल पे भी एप्लीकेबल होता है. मतलब हर एक पॉइंट को आप क्या बोलेंगे? लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट. ईच पॉइंट इज नोन एज अ लैटिस साइट और अ लैटिस पॉइंट. ओके, ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल व्हिच मे बी एन एटम, ठीक है। ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आपका आयन भी हो सकता है. मतलब समझो इस चीज को कि ये जो पार्टिकल है, दिस कैन बी एन एटम, दिस कैन बी अ मॉलिक्यूल और दिस कैन बी एन आयन. इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है. दिस इज नोन एज अ लैटिस point. This is known as a lattice point or a lattice site, ठीक है. This is known as a lattice point or a lattice site which can be an atom, molecule or ion, anything, ठीक है. Okay. Lattice points are joined by straight lines to bring out the geometry of the lattice. तो ये भाई साहब कैसे joined है? Straight line से joined है. These lattice points are joined by straight lines to bring about the geometry of the lattice, ठीक है. Unit cell is the smallest portion of a crystal lattice which when repeated in different directions जनरेट्स द एंटायर लैटिस. तो यूनिट सेल होता क्या है? देखो, आप ऐसे अगर लेकर जाओगे एक ही रहेगा, ऐसे ऊपर लेकर जाओ भाई साहब सेम, इस तरफ लेकर जाओ भाई साहब सेम, नीचे लेकर जाओ भाई साहब सेम, ठीक है. तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? यूनिट लैटिस. यूनिट सेल जैसे आपका देखो एक दीवार है, दीवार में जो ईंटों का अरेंजमेंट है वो भाई साहब सेम ही रहेगा ना.
ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आपने ईंटों को ऐसे रखा और कहीं पे जाकर आपने ईंटों को ऐसे रख दिया. इफ यू हैव केप्ट द ब्रिक्स लाइक दिस, इट्स नॉट पॉसिबल दैट एट सम पॉइंट यू कीप इट लाइक दिस. ठीक है, सो ऑल दीज आर अरेंज लाइक दिस ओनली. ठीक है, तो आपका यूनिट लैटिस बेसिकली क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द यूनिट लैटिस. यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस. एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है इन विच रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन जनरेट्स द एंटायर लैटिस. तो अगर आप इस डायरेक्शन में जाओ, ऊपर जाओ, भाई साहब इस तरफ जाओ या नीचे जाओ, यू आर गोइंग टू गेट द सेम क्रिस्टल लैटिस. ठीक है, ओके. A unit cell is characterized by its dimensions. इसके dimensions क्या क्या हो जाएंगे, A, B और C along X, Y and Z directions. ठीक है, और आपका एंगल क्या हो जाएगा, देखो ये अल्फा हो गया भाई साहब, अल्फा बिटवीन B and C, बीटा हो गया बिटवीन A and C और गामा हो गया बिटवीन A and B. So अल्फा बिटवीन B and C, बीटा is the angle between A and C and gamma is the angle between A and B. Thus a unit cell is characterized by 6 parameters. तो 6 पैरामीटर्स हैं. एक क्या क्या हो गया भाई साहब, 6 पैरामीटर्स, मतलब साइड्स के पैरामीटर्स होंगे ए, बी और सी, और एंगल्स के पैरामीटर्स हो गए अल्फा, बीटा एंड गामा. ठीक है, अल्फा, बीटा एंड गामा. क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. ठीक है, सो ये टिपिकल यूनिट सेल हो गया भाई साहब. ओके, यूनिट सेल्स में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. 2 कैटेगरीज में हम यूनिट सेल्स को प्रॉपर्ली क्लासिफाई कर सकते हैं. वन इज द प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स. प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या क्या होते हैं, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशंस ऑफ अ यूनिट सेल, इट इज कॉल्ड अ प्रिमिटिव यूनिट सेल. ठीक है, मतलब आपका देखो अगर कोई ऐसा यूनिट सेल होगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं सिर्फ कॉर्नर्स में ही प्रेजेंट है. ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, दिस इज नोन एज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल. दिस इज बेसिकली नोन एज अ प्रिमिटिव unit cell when the particles are present only at the corners. This is known as a primitive unit cell. ठीक है, centered unit cell. Centered unit cell मतलब क्या हो जाएगा, when a unit cell contains one or more constituent particles present at positions other than the corners, in addition to those at the corners, it is called a centered unit cell. ठीक है, तो centered unit cell आपके 3 टाइप के हो जाएंगे. एक हो गया आपका body centered. body centered का कैसे डायग्राम बनाते हैं भाई साहब अपन. ठीक है, तो body centered में अपन कैसे करते हैं, ये इसको ज्वाइन किया, एक डायगोनल से दूसरा डायगोनल. ठीक है, और ये डायगोनल से दूसरा डायगोनल, मतलब समझ रहे हो, रूम के उस कोने से इस कोने तक और रूम के उस कोने से इस कोने तक, ये जगह डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पे एक आपका यूनिट सेल है. यहाँ पे एक एटम, आयन या मॉलिक्यूल है. ठीक है, तो समझ लो ये हो गया आपका बॉडी सेंटर्ड, मतलब ये आपके सेंटर में है, तो दिस विल बी बॉडी सेंटर. ठीक है, दिस इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. आर वी गेटिंग दिस पीपल. ये हो गया आपका प्रिमिटिव और ये हो गया आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. ठीक है, ओके. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, सच अ यूनिट सेल contains only one constituent particle, that is atom, molecule or ion at its body center besides the ones that are at its corners. तो यहाँ पे 8 कोनों में तो है ही, लेकिन बीच में भी एक है. ठीक है, सच अ यूनिट सेल, ठीक है, contains one constituent particle, atom, molecule or ion at its body center. ठीक है, and the other ones at its corners. ठीक है, face centered unit cell. Face centered unit, such a unit cell contains one constituent particle present at the center of each face besides the one that at its corners. तो आपका भाई साहब समझ लो face centered कैसा होगा. face centered will look something like this. तो आपका भाई साहब ये हो गया face centered, मतलब यहाँ पे तो आपके यूनिट सेल रहेंगे ही. ठीक है, ये सब तो आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस 8 कोनों में तो रहेंगे ही, प्लस फेस में भी, मतलब यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक. ठीक है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक. ठीक है, इधर सामने एक और पीछे एक, ऐसा भी रहेगा. समझ में आ रहा है, तो मतलब इधर एक, ऊपर एक, नीचे एक, सामने एक, पीछे एक, ऐसा भी रहेगा. ठीक है, इसको अपन बोलेंगे फेस सेंटर. ठीक है, आपको पूरे चैप्टर में विजुअलाइज सब कुछ 3D में ही करना है. ठीक है, यू हैव टू विजुअलाइज दिस. एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड इन सच यूनिट सेल वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एनी 2 ऑपोजिट फेसेस. मतलब कैसा है भाई साहब, यहाँ पे सब में नहीं प्रेजेंट रहेगा, एनी 2 ऑपोजिट फेसेस. यहाँ पे 2, या तो यहाँ पे 2, या तो यहाँ पे 2, इन तीनों में से कोई एक रहेगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंड सेंटर. सो लेट्स सी द डायग्राम्स आउट हियर. यहाँ पे भाई साहब अगर आप देखोगे, सो दिस विल बी अ सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल. ठीक है, तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपको क्या दिख रहा है, ये 8 कोनों में आपको एटम्स दिख रहे हैं. दिस इज बेसिकली अ सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल. सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल,
बॉडी सेंटर्ड, आपको जैसे मैंने बताया कि भाई साहब बॉडी सेंटर्ड क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड होगा मतलब जहां पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे भी भाई साहब आपके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके सेंटर में, ये हो गया आपका बॉडी सेंटर, ठीक है। ओके, फेस सेंटर्ड क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, लेफ्ट और ये हो गया राइट, दिस इज लेफ्ट और राइट, ठीक है। टॉप एंड बॉटम, ऊपर और नीचे, लेफ्ट एंड राइट, और फिर फ्रंट एंड बैकवर्ड्स, आगे और पीछे, ये हो गया आपके फेस सेंटर, तो फेसेस पे है ये, ठीक है। और क्या है भाई साहब, देखो एंड सेंटर, एंड सेंटर में किसी एक पेयर में, या तो ये वाले पेयर में, या तो ये लेफ्ट एंड राइट वाले पेयर में, या तो टॉप एंड बॉटम में, या तो फ्रंट एंड बैकवर्ड्स में, यहां पे भाई साहब आपका एक होगा, ठीक है, एटम्स होंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सो दिस इज नोन एज सिंपल और प्रिमिटिव, this is basically known as simple or primitive, this is known as body centered, this is known as face centered, and this is known as end centered. So in all there are 7 types of primitive unit system, have 14 types of Bravais lattices, ठीक है। So types of primitive centered initial on the basis of the presence of their constituent particles, तो आपका आगे हो गया, क्या हो गया, प्रिमिटिव, ठीक है, दिस इज बेसिकली सिंपल और प्रिमिटिव, फिर हो गया आपका बॉडी सेंटर्ड, फिर हो गया आपका फेस सेंटर्ड, एंड देन एंड सेंटर्ड। सिंपल और प्रिमिटिव में 8 कोनों में, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड में 8 कोनों में प्लस बीच में, ठीक है, फेस सेंटर्ड में 8 कोनों में प्लस हर एक फेस में एक, ठीक है, आगे पीछे फ्रंट बैक, लेफ्ट एंड राइट, एंड टॉप एंड बॉटम, ठीक है। और आपका एंड सेंटर्ड में 8 कोनों में प्लस किसी एक में, या तो फ्रंट एंड बैक में, या तो लेफ्ट एंड राइट में, या तो टॉप एंड बॉटम में, आपको 2 मिल जाएंगे, ठीक है। दीज आर द क्लासिफिकेशंस, ओके। तो अपन देखते हैं भाई साहब यहाँ पे 7 क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, 7 क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है। द क्रिस्टलोग्राफर्स हैव डिवाइडेड इनटू 32 पॉइंट्स। तो आपका देखो क्यूबिक, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। तो प्रिमिटिव में आपका भाई साहब टोटल 22 एलिमेंट लेंस कितने हो गए भाई साहब, देखो यहाँ पे प्रिमिटिव हो गया एक, ठीक है, एक हो गया आपका बॉडी सेंटर्ड और एक हो गया आपका फेस सेंटर्ड, ठीक है। क्यूबिक में आपके टोटल 22 मतलब ए, बी और सी है, ठीक है। तो आपका मिनिमम सिमेट्री, और ये बाद में देखेंगे, सिमेट्री आपका बाद में। एक्सियल डिस्टेंस ए, बी एंड सी, इसमें सब में अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। ये नोट कर लीजिए आपका भाई साहब क्यूबिक सेल्स कौन कौन से होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, डायमंड एंड कॉपर। देखो यहां पे अगर हम क्यूबिक देखते हैं ना, ये आपका क्यूबिक हो गया, देखो दिस इज बेसिकली क्यूबिक, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी। तो ए और बी बराबर, बी और सी बराबर, तीनों भी बराबर। सबके बीच में एंगल कितना हो गया, देखो ये आपका ए है और ये आपका बी है। ए और बी के बीच में एंगल को क्या बोलते हैं अपन, गामा, 90 डिग्री है, ठीक है। ये हो गया आपका भाई साहब, ये हो गया आपका बी और ये हो गया सी। बी और सी के बीच में जो एंगल है उसको अपन बोलते हैं अल्फा, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। और ए और सी के बीच में जो एंगल है उसको अपन बोलते हैं बीटा, दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो अगर आप वापस आते हो यहाँ पे देखो क्यूबिक में क्या हो गया, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, 3 चीजें एग्जिस्ट करती हैं। प्रिमिटिव मतलब 8 कोनों में, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड मतलब 8 कोनों में एटम्स हैं और प्लस बीच में भी। और फेस सेंटर्ड मतलब 8 कोनों में प्लस ये दोनों सब फेसेस में, ठीक है। सो ये आपके 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे कितने हो गए, टोटल ब्राविस एलिमेंट्स आर हाउ मच, 3, ठीक है। टोटल ब्राविस एलिमेंट्स आर हाउ मच पीपल, हम 3। सो टोटल ब्राविस एलिमेंट्स आर 3, ठीक है। अगेन इन तीनों में सेम ही चीज होगा, चाहे भाई साहब आपका बॉडी सेंटर्ड हो, चाहे प्रिमिटिव हो, चाहे फेस सेंटर्ड हो, ठीक है।
चाहे आपका बॉडी सेंटर्ड हो, चाहे प्रिमिटिव हो, चाहे फेस सेंटर्ड हो, आपका A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। यहाँ पे ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, डायमंड एंड कॉपर, ऑल ऑफ देम फॉर्म दीस, ठीक है, क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, तीन ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब ऑर्थोरोम्बिक में। ऑर्थोरोम्बिक में क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं? प्रिमिटिव 8 कोनों में, बॉडी सेंटर्ड 8 कोनों में प्लस सेंटर ऑफ बॉडी, फेस सेंटर्ड 8 कोनों में प्लस फेसेस में, और एंड सेंटर्ड, मतलब सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑर्थोरोम्बिक में मिल जाएंगे आपको। यही 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, है ना। प्रिमिटिव मतलब 8 कोनों में, बॉडी सेंटर्ड मतलब 8 कोनों में प्लस बीच में, फेस सेंटर्ड मतलब आपके 8 कोनों में प्लस 6 फेसेस में, और आपका एंड सेंटर्ड मतलब 8 कोनों में प्लस किसी 2 फेसेस में, या तो ये या तो ये या तो ये, ठीक है। तो ये चारों भी आपके पॉसिबल है किसमें? ऑर्थोरोम्बिक में। ऑर्थोरोम्बिक में भाई साहब अपन क्या देखते हैं, देखो ऑर्थोरोम्बिक अगर आप देखोगे तो ए है, ये बी है और ये सी है। बहुत ध्यान से देखोगे तो ए और बी और सी है। इसमें अगर आप देखते हो तो ए और बी और सी तीनों भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, ना ए बी के बराबर है और ना बी सी के बराबर है। ऑल ऑफ देम आर अनइक्वल, बट ऑल ऑफ देम विल हैव द सेम एंगल, दैट इज 90 डिग्री विद इन देम। तो ये वाला भी 90 होगा, देखो ए और सी के बीच में 90, बी और सी के बीच में 90, और ए और बी के बीच में भी 90, ठीक है। ऑल दीज 3 एंगल्स विल बी बेसिकली इक्वल टू 90 डिग्री। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, देखो इसको नोट कर लो भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोम्बिक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ऑल दीज विल फॉर्म ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। तो ऑर्थोरोम्बिक में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए? 4। क्यूबिक में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए? 3, ठीक है। नाउ वी कम टू टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, एक आपका प्रिमिटिव और दूसरा आपका है बॉडी सेंटर, ठीक है। तो 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मतलब कैसा होगा, देखो टेट्रागोनल अगर आप देखोगे, दिस इज बेसिकली टेट्रागोनल। तो यहां पे ए और बी बराबर है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू सी। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तीनों एंगल्स आपके 90 डिग्री के हैं। अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू आपकी कितनी की है? 90 डिग्री के। तो ए और बी बराबर है, बट इट इज नॉट इक्वल टू सी। तो इसमें आपका हो गया टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में आपके 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, प्रिमिटिव मतलब 8 कोनों में, और आपका क्या है भाई साहब? बॉडी सेंटर्ड, मतलब एक 8 कोनों में और प्लस बॉडी के सेंटर में एक, ठीक है। सो व्हाइट टिन, टिन डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, अमोनियम ब्रोमाइड, ये सब आपके भाई साहब हो गए एग्जांपल्स टेट्रागोनल के। इसको लिख लीजिए भाई साहब, ठीक है। देन वी कम टू मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में 2 ही हैं, प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर्ड। प्रिमिटिव मतलब आपके 8 कोनों में, और एंड सेंटर्ड मतलब या तो इन दोनों में, या तो ऊपर नीचे में, या तो आगे पीछे में, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ पे A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, ठीक है। तो अपन इसको देख लेते हैं भाई साहब। आपने क्यूबिक देखा, ऑर्थोरोम्बिक देखा, टेट्रागोनल देखा। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, देखो A और B बराबर नहीं है, और B और C भी बराबर नहीं है। ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का नहीं होगा, बाकी ये दोनों एंगल 90 के होंगे, ठीक है। सो दीज 2 विल बी बेसिकली इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो ये हो गया आपका मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में 2 है, प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर्ड, ठीक है। A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपके सारे मोनोक्लिनिक कंपाउंड्स हो गए। मोनोक्लिनिक सल्फर, सोडियम सल्फेट, हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट बेसिकली, और क्या है भाई साहब आपका? कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। फिर आता है आपका भाई साहब ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में सिर्फ प्रिमिटिव एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देख लेते हैं भाई साहब ट्राइक्लिनिक। दिस इज बेसिकली ट्राइक्लिनिक, ठीक है। यहाँ पे ए बी और ये हो गया भाई साहब आपका सी, ठीक है। ए और बी और ये हो गया आपका सी। यहाँ पे ना तो ये 90 है, ना तो ये 90 है, और ना ही ये 90 है, सब टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। कोई भी 90 डिग्रीज नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे भाई साहब? ट्राइक्लिनिक में नीदर अल्फा नॉट बीटा नॉट गामा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। और इनमें से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, ना नीदर ए इज इक्वल टू बी नॉट बी इज इक्वल टू सी। ये आपके भाई साहब हो गए कंपाउंड CuSO4 into 5H2O, ठीक है, और K2O Cr2O7 और H3BO3। हेक्सागोनल दैट इज प्रिमिटिव। हेक्सागोनल हो गया भाई साहब आपका प्रिमिटिव हो गया, ठीक है। हेक्सागोनल मतलब ये हो गया, देखो हेक्सागोनल यहाँ पे 120 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। अल्फा इज इक्वल टू 90, बीटा इज इक्वल टू 90, और ये हो गया आपका 120 डिग्री का, ठीक है।
तो ये हो गया आपका 120, ठीक है, और ये हो गया a इज इक्वल टू बी, बट b इज नॉट इक्वल टू c, ठीक है, a और b बराबर है, a और b बराबर है, बट b इज नॉट इक्वल टू c, ये हो गया आपका हेक्सागोनल, ठीक है, दिस इज बेसिकली हेक्सागोनल, ग्राफाइट, जिंक ऑक्साइड एंड कैडमियम सल्फेट, ओके। रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, इसमें भाई साहब आपका कितना होता है, एक ही होता है प्रिमिटिव, दैट इज 1, ठीक है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बट दिस इज नॉट, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा और बीटा 90 डिग्री का है, लेकिन गामा 90 डिग्री का नहीं है। कैल्साइट, HgS, सिनेबार, सोडियम नाइट्रेट, ICl, ये सब हो गया भाई साहब आपके क्या, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको फिगर्स समझ में आते हैं तो देखो, जैसे यह वाला आपका हो गया रोम्बोहेड्रल, a b इज इक्वल टू a, c इज इक्वल टू a, ये वाला आपका भाई साहब कोई भी आपका 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, दिस इज बेसिकली रोम्बोहेड्रल, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, आप अगर इनको ऐड करोगे, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 12 13 14, इसीलिए हम बोलते हैं 14 ब्रेविस लैटिसेस, ठीक है। तो आपके 14 ब्रेविस लैटिसेस आर पॉसिबल, ठीक है, ओके ओके ओके। नाउ हम आते हैं भाई साहब क्यूबिक में। क्यूबिक में आपने क्या पढ़ा, 3 पॉसिबल हैं, एक है आपका प्रिमिटिव, दूसरा है आपका बॉडी सेंटर्ड, और तीसरा है आपका फेस सेंटर्ड। बहुत ध्यान से देखिए, ये प्रिमिटिव हो गया मतलब 8 कोनों में, ठीक है, ये हो गया बॉडी सेंटर्ड मतलब 8 कोनों में प्लस बीच में, और आपका फेस सेंटर्ड क्या हो जाएगा, 8 कोनों में प्लस हर एक फेस में, ठीक है, टॉप एंड बॉटम, दोस टू साइड फेसेस एंड फ्रंट एंड बैक फेसेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका फेस सेंटर्ड। अभी हम आते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में आपने क्या क्या देखा भाई साहब, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। एक हो गया प्रिमिटिव मतलब 8 कोनों में, एंड सेंटर्ड मतलब 8 कोनों में प्लस किसी 2 ऑपोजिट फेसेस में, किसी भी 2 ऑपोजिट फेसेस मतलब टॉप एंड बॉटम भी हो सकता है, लेफ्ट एंड राइट भी हो सकता है, और फ्रंट एंड बैक भी हो सकता है, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा आपका बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड मतलब आपका क्या हो जाएगा, 8 कोनों में प्लस सेंटर ऑफ द बॉडी। एंड देन वी हैव फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड मतलब 8 कोनों में प्लस हर एक फेस में, ठीक है। दैट इज बेसिकली आपका ऑर्थोरोम्बिक। सो सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक में ही आपके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक में आपके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। टेट्रागोनल अगर आप देखोगे तो इसमें प्रिमिटिव है और बॉडी सेंटर्ड है, तो 1, तो ये आपका टेट्रागोनल हो गया, 8 कॉर्नर में एक, और आपका बॉडी सेंटर हो गया, ठीक है। सो टेट्रागोनल मतलब आपके सारे उसमें और एक बीच में, ठीक है, बॉडी सेंटर, ओके। नाउ वी कम टू मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक, वन साइड डिफरेंट इन लेंथ टू अदर, ओनली 2 एंगल्स स्पेस 90 डिग्री। तो आपका ये होगा, देखो मोनोक्लिनिक, ये हो गया आपका प्रिमिटिव, ठीक है। और प्रिमिटिव में मतलब आपका यहाँ पे मोनोक्लिनिक में क्या हो रहा है, वन साइड डिफरेंट इन लेंथ टू दी अदर, ठीक है। आपका भाई साहब एक साइड डिफरेंट इन लेंथ टू दी अदर है, और ठीक है, ओनली 2 एंगल्स बिटवीन द फेसेस आर ऑफ 90 डिग्री। तो 2 ही एंगल ऐसे हैं जो 90 डिग्री के हैं, और बाकी आपका 2 एग्जिस्ट करता है, एक प्रिमिटिव और दूसरा एंड सेंटर्ड। ट्राइक्लिनिक, अनइक्वल साइड्स, ए बी और सी तीनों भी अनइक्वल, ए बी एंड सी आर अनइक्वल एंगल्स एज वेल, एंड नन ऑफ देम इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, ठीक है। किसी मिठाई के डिब्बे को अगर आप टेढ़ा कर देंगे तो दैट विल बी अ ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट विल बी अ ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर, ओके ओके ओके। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मतलब आपका वन साइड डिफरेंट इन लेंथ टू द अदर 2, एक साइड है जो डिफरेंट इन लेंथ है टू द अदर 2। आपने देखो उस दिन देखा कि अगर हेक्सागोनल होता है तो हम इस तरह से लेते हैं भाई साहब, ये हो गया आपका ए और ये वाला हो गया आपका, तो यूनिट सेल आपका ये पूरा यूनिट सेल नहीं होगा, दिस विल नॉट बी द एंटायर यूनिट सेल। देखो हेक्सागोनल में ध्यान दो, है ही नहीं। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान देंगे, देखो ये आपका ये आपका 6 साइड्स है ना, ये आपके 6 साइड्स हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये जो 6 साइड्स आपको दिख रहे हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, ठीक है, आप यूनिट सेल को कभी भी ये पूरा नहीं लेंगे 1 2 3 4 5 6, आप यूनिट सेल को ऐसे लेंगे, देखो दिस विल बी अ यूनिट सेल, ये आपका होगा यूनिट सेल। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर विल नेवर बी अ 6 साइडेड फिगर, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। सो हेक्सागोनल, वन साइड इज डिफरेंट इन लेंथ टू द अदर 2, द मार्क्ड एंगल बिटवीन द 2 फेसेस इज 120 डिग्री। तो दोनों भी फेसेस के बीच में मार्क्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। रोम्बोहेड्रल भाई साहब क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी बेसिकली हेक्सागोनल, वन साइड इज डिफरेंट इन लेंथ टू द अदर 2, और इन दोनों के बीच में मार्क्ड एंगल कितने का हो जाएगा भाई साहब, 120 डिग्री का। दिस इज हेक्सागोनल। रोम्बोहेड्रल इसमें एक ही चीज पॉसिबल है,
ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, सारे साइड्स इक्वल लेंथ, ओनली एंगल्स ऑफ द टू फेसेस आर 90 डिग्री। तो एक भाई साहब लेस देन 90 होगा भाई साहब, बाकी सब एंगल, दोनों एंगल्स आपके 90 डिग्री होंगे। तो इस तरह से आपका बनता है 14 ब्राविस लैटिसेस पीपलम, ठीक है। ऑल दीज आर 14 ब्राविस लैटिसेस विच आर पॉसिबल, ठीक है। आपको ये सिमेट्री याद रहे या ना रहे, नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन हर एक में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। मतलब क्यूबिक में आपके 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, ऑर्थोरोम्बिक में 4, टेट्रागोनल में 2, मोनोक्लिनिक में 2, ट्राइक्लिनिक में 1, हेक्सागोनल में 1 और रोम्बोहेड्रल और टेट्रागोनल में 1। ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कंपाउंड्स के नाम, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कॉपर का नाम याद रखो तो भी चलेगा, डायमंड का थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, रोम्बिक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट ना रखो तो भी चलेगा। ये जो कंपाउंड्स है मोर और लेस आपको इनके नाम याद होने चाहिए। तो ये आपका 14 लैटिसेस है और ये आपके कुछ कंपाउंड्स है, क्योंकि कंपाउंड्स के नाम से थोड़ी ना आप बता पाओगे भाई साहब, तो आपको याद करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। आप डायग्राम्स ड्रॉ करके बोला पाओगे कि भाई साहब क्यूबिक में ये 3 पॉसिबल है या ऑर्थोरोम्बिक में ये 4 पॉसिबल है, लेकिन कंपाउंड का नाम देखकर कैसे बता पाओगे किसमें क्या पॉसिबल है। सो द ओनली वे आउट इज टू मेमोराइज दिस, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है, किसमें क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, दैट इज समथिंग दैट यू विल हैव टू मेमोराइज। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपलम? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम पीपलम।